Very nice. Hey, hi, hello, everyone. Hello. How are you? How are you? Hope you are doing great. बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे एंड वी आर स्टडिंग नंबर सिस्टम. ओके, वी आर स्टडिंग नंबर सिस्टम. तो चलो इस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, यस, फाइन फाइन फाइन. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस, studied the multiplication of natural numbers and whole numbers up to 2 and 3 digit. Have you remembered it? Have you remembered it? That in of 2 and 3 digits. Is it clear to everyone? Okay. Okay. Very nice. Very nice. Now we will start our class from a question. So the question is on your screen. I am disabling the chat section and turning on the poll section. Please comment your answer in the poll section. It means you have to choose answer in the poll section. Okay, just go in the poll section and choose your answer. The question says how many minutes are there in 360 seconds. Okay, you have to tell how many minutes are there in 360 seconds. Okay. बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा. मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा इस क्वेश्चन में. यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप मिनट्स काट करके सेकंड्स लिख दो. यहाँ पे सेकंड काट करके मिनट्स लिख दो और अब लगाओ क्वेश्चन को. ठीक है, अब लगाओ इस क्वेश्चन को. ठीक है, हालांकि कई सारे बच्चों ने दे दिया आंसर. यही ना, यही इशू आ रही है कि सारे बच्चों ने दे दिया आंसर. अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो. ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लीकेशन का नहीं रह जा रहा है, ये फिर डिवीजन का हो जा रहा है. ठीक है बेटा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे रहने देता हूँ तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है. चलो, आप सभी को मैंने एक हिंट दे ही दिया है कि डिवीजन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए. How many minutes are there in 360 seconds? Okay, so you have only 10 seconds. Please go in the poll section and choose your correct answer. You have only 10 seconds. Okay, students. And I can see that only 18 students have answered. 19 students. Yes, 19 students have answered. One student just answered right now. Okay. There are 28 students in this class, and out of 28, only 20 students have answered. Still 8 students didn't answer. Okay, so please answer in your poll section. Okay, now you have only 5 seconds. Now you have only 5 seconds. After 5 seconds, I will delete poll section. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1, time up. Okay, time up. ओके बच्चों, अब सारे बच्चे इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में. एवरीवन प्लीज आंसर इन द चैट सेक्शन. Everyone please answer in the chat section.
Okay, very nice. ओके, आंसर ए है, ठीक है, वेरी नाइस। चलो अब इसका देखते हैं आंसर क्या है ना। इसको सॉल्व करूंगा, आप सभी लोग समझेंगे, आप सभी बच्चे इसको समझेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी मिनट्स, ओके, हाउ मेनी minutes are there in 360 seconds? You all knows that 1 minute has 60 seconds. Okay, students, 1 minute has 60 seconds. So 1 second will be 1 by 60 minute. But we have to answer for 360 second. So multiply both the sides with 360. You will get 360 seconds here, and here you will get 360 multiplied by 1 by 60 minutes. When you solve it, it will become 6 minutes. It will become 6 minutes. So the correct answer will be A part. सभी बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन? सारे बच्चों को समझ में आया? देखो बेटा, 1 मिनट में, ठीक है, 60 सेकेंड होते हैं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाई 60 मिनट्स। जस्ट उसका अपोजिट होगा ना। ओके, अब जब इसका जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इसका अपोजिट होगा, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें लाना है, तो वो 360 सेकेंड्स के लिए लाना है, सॉरी 360 सेकेंड्स के लिए लाना है, ठीक है। तो अगर 360 सेकेंड के लिए लाना है, तो आपको 360 दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड then you will get your final answer, and that is 6 minutes. Okay, now we will move to our today's topic. Okay, so there are some important points you have to know. The first point is the product of two or more natural whole numbers is also a natural whole number. It means if you multiply two natural or whole number, then the result will also be a natural number or whole number. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी दो नेचुरल नंबर्स का या फिर किसी दो होल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराते हो, देन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो भी अपने आप में क्या होगा, एक नेचुरल नंबर या फिर एक होल नंबर होगा। यहाँ पे देखो 3 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, और इनको मल्टीप्लाई कराने पे जो आंसर आ रहा है बेटा, वो भी अपने आप में क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या आप सभी को ये वाला क्लियर है पॉइंट? सभी को क्लियर है? ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। आप सभी लोग इसको नोट करते रहना बेटा, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीन शॉट लेते रहना। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सभी लोग। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो, हमने पोल ऑन कर दिया। So everybody have to answer in the poll section, and that's why I have disabled the chat section. Okay, you have 30 seconds for solving this question, because this question may take some more time. So please take your time. Please take your time and then answer. कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व करना, तब जाके इसका आंसर करना, ठीक है।
Everyone, please answer. Drop your answer in the poll section, okay? Okay. Now I will delete poll section. Okay. Only 5 seconds are left. Only 5 seconds are left. Students, after 5 seconds, I will delete poll section. So 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Now you can answer in the chat section. Now you can answer in the chat section. Okay. चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग बोल रहे हो कि सर ऑप्शन जो होगा, ठीक है, इसका जो होगा वो बी वाला करेक्ट होगा। तो चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो बेसिकली वी हैव टू मल्टीप्लाई 513 विथ 136। 6 3 जार 18, कैरी हो जाएगा 1। 6 1 जार, ठीक है बेटा, देखो 6 1 जार 6 एंड ये कैरी हो जाएगा 1, तो 6 और 1 7, कैरी खत्म हो जाएगा। 6 5 जार 30, so you have to write 30 right, like this. Okay, now 3 will multiply with 3, 3 3 jar 9. You have to left this space. Okay, you have to left this space, and the 3 3 jar 9, and the 3 1 jar 3, 3 5 jar 15. Okay, 3 5 jar 15, so you have to write 15 like this. After this, you have to multiply 1. Okay, so 1 3 jar 3, 1 1 jar 1, 1 5 jar 5, 8, इसको ऐड कर दीजिए। 16 को 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 3 3, 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 1 6 6 3 9, and this 5 and this 1 will become 6. So the answer will be 69,768. It means the correct answer will be B part. सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? बताओ, सबको क्लियर है ना बेटा? ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बच्चों 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुक जाओ। अभी आपको मेरी क्लास दिखाई देगी, आपकी स्क्रीन जो भी है, ठीक है, शो होने लगेगी। बस 1 सेकंड रुक जाओ। ओके बच्चों, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा होगा, है ना? तो आप सभी को भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू आंसर इन द, ओके, so you have to answer in the poll section. Please answer in the poll section. I have disabled the chat section.
Students, only 10 seconds are left. Okay, only 10 seconds are left. Okay, so now I will delete poll section and turn on the chat section. चलो अब सभी लोग चैट में इसका आंसर बताओ कि क्या होगा इसका आंसर. ओके, डी वाला पार्ट. अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि क्या होगा इसका आंसर. देखो बच्चों, बेसिकली वी हैव टू मल्टीप्लाई 31 विथ 1000. तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको इस प्रकार से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो उन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है, तो 31 1 जार 31 आएगा और जितने जीरो आएंगे बच्चों उसको एज इट इज उतार देना. तो देखो इस तरीके से आप इसको लिखोगे तो आंसर विल बी 31,000. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी पार्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? गलती से आपने ए टच कर दिया, ओहो. अच्छा ठीक है बेटा, अगली बारी से ध्यान रखना. ओके ओके ठीक है, चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं. यस एवरीवन, प्लीज पुट अ हेडिंग division in your notes. Okay, in your notes please put a heading division because we are going to study division. Okay, so what we are going to study, please write in the chat box what we are going to study. Write in the chat section. वेरी नाइस, हम लोग डिवीजन पढ़ने वाले हैं और अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं फिर. ओके, सो देखो बेटा, डिवीजन जो होता है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है और इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं. कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है तो समझ लो वो क्या है, डिवीजन है. मान लो 5 है डिवाइडेड बाई 2 लिखा है ना, इसको पढ़ते भी डिवाइडेड बाई, तो ये आपका किसका साइन है, डिवीजन का साइन है. आई बात समझ में? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसको हमेशा ऐसे ही लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं. आप एक और तरीका है उसको भी अपना सकते हो एंड दैट इज इस प्रकार से. तो 3 तरीके, एक ये, एक ये, एक ये. आर यू फैमिलियर विथ दीज नोटेशंस? आर यू फैमिलियर? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि इनमें से किसी एक को ना जानता हो? आई होप आप सभी लोग इसको जानते होंगे, है ना. यस, वेरी नाइस. तो बस यही है डिवीजन इसका. ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है. ओके, तो मैंने आपको सिखा दिया कि डिवीजन को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो. यहाँ पे ए और बी क्या है, नंबर्स है. यहाँ पे हम बी को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ में बेटा, ए के साथ में. ओके, अच्छा कोई बच्चा बताएगा क्या कि इस बी को क्या नाम देते हैं और इस ए का क्या नाम है? कोई बच्चा बताएगा क्या चैट सेक्शन में कि बी को हम लोग क्या बोलते हैं? बी का नाम क्या है? डिवाइजर है, डिविडेंड है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, क्या है बेटा? बच्चों मेरी स्क्रीन आ रही है आपके मोबाइल फोन पर? सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताइए. ओके, सो देवा कुमार के नाम से जो बच्चा है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो क्योंकि नेटवर्क का इशू होगा बेटा आपकी तरफ से. एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, ठीक है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. ओके, वेरी नाइस. तो मेरा सवाल ये था कि इस बी को हम लोग क्या नाम देते हैं? माइक मत ऑन करिए. तो बेटा इस बी का नाम होता है डिविडेंड. इस बी का नाम क्या होता है? डिविडेंड होता है. आई बात समझ में? और इस ए का नाम क्या होता है? डिवाइजर. यानी कि अगर मान लो लिखा हुआ है 5 इस प्रकार से और यहाँ पे लिखा है मान लेते हैं 29 ऐसे, हाँ 290. तो ये जो 290 है ना बेटा, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिविडेंड. और इस 5 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिवाइजर.
सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। आप सभी से अगर मान लीजिए पूछा जाए कि क्या है डिविडेंड, क्या है डिवाइजर, तो आप बता पाओगे ना? ओके, तो देखता हूं मैं कि आप लोग बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप सभी से। बताओ इसमें 8 को क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल कॉल 8, डिवाइजर और डिविडेंड? सर डिवीजर। ओके, वेरी नाइस। ओके, डिविजर, यस। And what we will call 23? And what we will call 23? Yes, very nice. Very nice. इस क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना है। क्या आप सभी को इसका सॉल्व करके आपको बता पाएंगे? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। Okay, okay. So I am telling that you have to answer this particular question. What will be the solution for this particular question? Can anybody tell me? No, you have to not find in decimals. Okay. अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर छोड़ दो बेटा। हाँ, चलो मैं बताता हूँ आप सभी को। Basically, you can see that the first digit is 5. Okay, 5. तो क्या बताओ 5 को आप 8 से डिवाइड कर पाओगे या नहीं? पहले बताओ इतना। क्या 5 नो को सर। 8 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं सर। वाई या एन? वाई या एन? नहीं डिवाइड कर पाएंगे। वेरी नाइस। तो जब नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो थोड़ा सा और आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अब इन दो नंबर्स को ले लो, इन दो नंबर्स को। 57, तो क्या हम 57, ठीक है, 57 को 8 से डिवाइड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन हमें ऐसा इसका टेबल पढ़ना है, हमें 8 का ऐसा टेबल पढ़ना है बच्चों कि या तो 57 आ जाए या फिर 57 से कम आए। ठीक है, हमें ऐसा टेबल पढ़ना है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द टेबल ऑफ 8। ओके, कितनी बार में जाएगा? कौन बताएगा कितनी बार में जाएगा? वेरी नाइस, 7 टाइम। Yes, 7 times because 8 sevens are 56. 8 sevens are 56. So basically you have to subtract this. Okay, you have to subtract this. So when you subtract 7 uh, 6 from 7, then you will get 1, and 5 from 5, then you will get 0. Okay, now this 5 will remain as it is. Now you have to read table for 8 so that 15 या तो कट जाए या तो 15 से थोड़ा सा कम आए, है ना? तो 8 2s are 16 होता है, so we can't write it, so we will write 8 1s are 8, so the remainder will be 7. So the remainder will be 7. Okay, here you can see this number is remainder. Okay, this number is, what is this number? What we will call this number? 575. 575 को हम लोग क्या बोलेंगे? 575 को, इस नंबर को बेटा क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे, डिविजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। बहुत बढ़िया। डिविडेंड। इस वाले नंबर को क्या बोलेंगे?
डिवीजर। बहुत सही। और एक बेटा, एक और नंबर आप देख पा रहे हो, ये वाला नंबर, इसको क्या बोलेंगे? कोई बच्चा बताएगा कि 71 को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन। तो बेटा 71 को बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कोसेंट बोलते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, तो जिस बच्चे को अभी को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तो उसको कोसेंट बोलते हैं। ओके, अच्छा बच्चों रुक जाना एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकेंड रुक जाओ। अब देखो इस वाले पेज का आप स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट जरूर कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस वाले नंबर का नाम है डिविडेंड, इस वाले नंबर का नाम है डिवीजर, इस वाले नंबर का नाम है रिमाइंडर और इस वाले नंबर का नाम है कोशेंट। ले ली सर। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ले यस ली। सर। ओके ओके ओके। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन एनीबडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगर हाँ तो चैट सेक्शन में इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो चैट सेक्शन में आंसर करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको इसका आंसर सॉल्व करके बताऊंगा। ओके बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका आंसर देता हूँ, ठीक है? कुछ बच्चे ने सही आंसर किया था, कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया था, ठीक है? तो जिन्होंने भी 203 आंसर किया है उनका सही है, जिन्होंने 23 आंसर किया है उनका गलत है। ओके, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो वी हैव टू डिवाइड 2436 with 12. So first of all, we will divide 24. So आपको 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आप 12 का टेबल पढ़िए, कितनी बार पढ़ेंगे आप बताइए, कितनी बार में हो जाएगा ये? तो only 2 times, okay? Only 2 times. 12 2s are 24 and this will cancel each
बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके ओके ओके, वेट अ सेकंड, प्लीज वेट अ सेकंड, ओके। अब देखो विजिबल है ना स्क्रीन? अब देखो विजिबल है ना? ओके, तो मैंने आपको जो समझाया था अभी को वो क्लियर था कि आंसर 203 आएगा? सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। ओके, so you can take screenshot also for this particular question. Okay, if you want to take screenshot, then please take. Now we will move further. See, here is the question. The question says, if there are a total of 25 pens in the class and it has to be divided equally among 5 children, then how many pens will each child get? बोला ये जा रहा है कि क्लास है और उस क्लास में 25 पेन्स हैं एंड इट हैज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन, और 5 बच्चे हैं उस क्लास में। बेटा 5 बच्चे हैं, ठीक है। मैं बच्चों को थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको समझ सको, इसको फील कर सको, ठीक है। सपोज देयर आर 5 चिल्ड्रंस, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, ओके, and you have to distribute 25 pens. Okay beta, there are pens but the number of pens are 25. So how much one student will get that pen? एक बच्चा कितना पेन पाएगा? per student 5 pen. So basically students are saying the answer will be 5 because per student will get 5 pen. Very nice, very nice. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो बेटा 5 बच्चे हैं और हमें 25 यानी कि 25 पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो वी विल डिवाइड 25 विद 5, यू विल गेट 5। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी नाइस। सो द रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0, है ना? रिमाइंडर 0 होगा बच्चों। ओके, आप चाहो तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने अभी को सिखाया वही सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो बच्चों लिखा है द डिवीजन ऑफ टू नेचुरल होल नंबर इज आल्सो नॉट नेसेसरी टू बी नेचुरल होल नंबर। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा बोला जा रहा है कि अभी देखो पीछे वाले सवाल में हमने क्या देखा था, पीछे वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि 2 नेचुरल नंबर थे, उनका मल्टीप्लिकेशन कराया जा रहा था और जो रिजल्ट आ रहा था वो भी अपने आप में क्या था? एक नेचुरल नंबर था। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी बात नहीं है। 3 को डिवाइड कर दो 2 के साथ में, क्या आता है? 1.5। और बेटा 1.5 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, ना ही ये होल नंबर होता है। जबकि 3 और 2 ये दोनों ही क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। क्या आप सभी को समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं? क्या आपको समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रिजल्ट विल आल्सो बी अ नेचुरल और होल नंबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लास, इज इट क्लियर? ओके ओके, अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? लिखा है कि ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। बेटा इसको तो मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ, याद करो। सभी बच्चे बताएंगे क्या मैंने इवन नंबर पढ़ाया है आप सभी को? सब बच्चे Yes, बताएंगे। sir. यस, हम लोगों ने इसको बहुत पहले ही सीख लिया था, मैंने ही आपको इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
Okay, so even number are those numbers which can be divided by 2 and the remainder is 0, है ना, जिनको 2 से भाग कर दिया जाए उन नंबर्स को ही बोलते हैं क्या, इवन नंबर्स। और बच्चों अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर ऑड नंबर्स, सो व्हाट विल योर ओपिनियन, व्हाट विल योर आंसर, व्हाट इज ऑड नंबर? नहीं, रौनक राठौर के नाम से जो बच्चा बोल रहा है कि द ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज रॉन्ग। Okay, that is wrong. I want definition of odd numbers. Yes, विवेक जोशी के नाम से एक बच्चा है, उसने बिल्कुल सही बताया। They are not divided by 2. Very nice, Pratap Ram. Very nice, very nice. They are not divided by 2. So those numbers which can't be divided by 2 are known as odd numbers. It is not divided by 2. Yes. Odd number is not divisible by 2. Yes, very nice. Very nice, dear. Good. Now हम इसको आगे अब कंटिन्यू करेंगे। देखो मैंने ये बता दिया, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर सकते हो, दोनों बातें हैं, ठीक है। आप या तो इसको नोट कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर प्राइम नंबर्स? यू कैन आल्सो टर्न ऑन योर माइक इफ यू वांट टू टेल व्हाट आर प्राइम नंबर्स। What are prime numbers? Can anybody tell me? If yes, then you can also type in the chat section, or you can turn on your mic and tell the answer. कोई बच्चा नहीं है जो नहीं बताएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ, इतना कठिन सवाल पूछ लिया क्या मैंने? इतना कठिन है क्या? कोई बच्चा बोल नहीं रहा, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया। So एक बच्चा बोल रहा है कि it is divided by 1 and itself. Very nice. They are divided by 1 and by itself. A number that is divisible by only by itself and 1, 2, 3, 5, 7 and 11. No, 1 and 2 is not prime numbers. Even 9 is also not a prime number. बच्चों 9 is also not a prime number. 1 is not a prime number. 2 is sorry. 1 is not a prime number. 2 is a prime number. Sorry, 2 is a prime number, but 9 is not a prime number. Okay, हमने क्या बोला? देखो समझ लो। देखो वे नंबर्स जो कि या तो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, इट्स सेल्फ डिविजिबल हो, या तो 1 से डिविजिबल हो, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एंड द एग्जांपल्स आर 2, 3, 5, 7। कोई बच्चा अगर 9 बोल रहा है तो 9 नहीं होता है, 11 होता है, ठीक है, 13 होता है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके ओके ओके। Now, can anybody tell me what are composite numbers? What are composite numbers? You can also turn on your mic if you know the answer, or you can also type in the chat section. What are composite numbers? No, Vivek Joshi, your answer is incorrect. Your answer is incorrect. Can anybody tell me the correct answer for composite numbers? No. No, Pratap Ram, your answer is not correct. चलो बच्चों, अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। देखो,
ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, मेरी बात को समझिएगा। दोज नंबर्स विच आर नॉट अपोजिट नंबर। बच्चों समझ में आया मेरी बात? बच्चों सबको क्लियर है? Those numbers which are not prime number are called composite numbers, and the examples are composite number from start from 4। ठीक है, देखो बेटा, एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर। वन इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर दो एक प्राइम नंबर होता है तो दो को हम लोग लेंगे नहीं कंपोजिट नंबर में। तीन भी एक प्राइम नंबर होता है तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे कंपोजिट नंबर में। तो बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 4, 4, 8, 15 एंड सो ऑन। सॉरी 55, 15 भी हो सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, 15 भी सही है। सबको क्लियर है? 4 is the smallest composite number। Okay बच्चों, now you have to solve this question। Now you have to solve this question। Please solve this question and give your answer in the poll section। Give your answer in the poll section। सारे बच्चे आंसर करिए। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए। Okay students, okay, now I will delete poll section and turn on the chat section। Write your answer in the chat section। See, we have to divide 60 with 4। जब 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 1 जा 4 होता है। ओके, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा और ये 20 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये 0 यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा। नाउ यू हैव टू रीड द टेबल फॉर 4। सो 4 5 जा 20, remainder will be 0 and quotient will be 15। so the answer will be B part, it means 15। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? ओके ओके, सो बच्चों ये क्लास यहीं तक ओवर होती है। आप अपना डाउट पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट। ओके, ये क्लास यहाँ पे ओवर हो रही है। अगर आप आपका डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट नहीं है, वेरी नाइस। बाकी बच्चे जिनका भी डाउट है आप पूछ लीजिए।